हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक ऐसे बाइक के बारे में बात करेंगे विच इज़ probably the best entry level sports bike currently sold in India. I mean, yes, when we talk about entry level sports bikes, there are a lot many options as of now. Earlier देखा जाए तो शायद हमारे दिमाग में सिर्फ R15 ही आता था, but अभी देखा जाए तो there have been offerings from so many brands. You talk about Apache R310, KTM 390, KTM के तो पूरे एकदम हायरार्की निकल आए, 125, 200, 250 पता नहीं क्या क्या है. And there are other brands as well, जैसे कि Gixxer, there is Honda CBR 250, and there is one single brand which is very very well known in terms of world superbike racing. आप MotoGP की बात कर लो, it is a pure performance brand, and the offering from that brand is a really nice one because it's a parallel twin engine setup and sounds freaking amazing. Let's see what the bike is. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about, telling me I should do this, telling me I should do that, telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more. And I've been in the moment, I've been in the zone and I'm... So this is the Yamaha R3, jack of all trades. This is one of those kinds, and the best part about this bike is it's super sports, and you can also do sports touring on this. So it's not that कि ये दिखता aggressive है, so it's that difficult to be ridden. But if you want to tweak it for a track setup, then you can do it. You want to do touring on this, you can do it. And the best part about this is the ownership. When we talk about ownership, it's always about after sales service, maintenance costs and all those stuff. So उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. And the best guy to talk about this is my brother who owns this bike, and he is TK Fast, Instagram ID TK_Fast_27. So कब से है ओनरशिप, एंड since when have you been riding this bike? ये फर्स्ट 2016, तो अभी 4 साल होने को है. एंड यस, उसी टाइम से चला रहा हूँ, एंड इट्स बीन एन एब्सोल्यूट पीच. क्या बढ़िया बाइक है. जब खरीदने वाला था तो क्या ऑप्शन थे तेरे पास? तब मैंने भाई को भी पूछा था उस टाइम, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज बीन अ राइडर विच आई लुक्ड अप टू. तो मैंने पूछा, इसने बोला ड्यूक 390 चेक कर. मैंने चेक किया, बहुत ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग में उसका पावर आ जाता है इनिशियल. मुझे याद है तू ड्यूक 390 बोल रहा था, बार लेना है. बट अभी सपोज तो सोच ले कि you would have owned a Duke 390, then what would have been the difference? पहली बात तो अभी ड्यूक 390 यहाँ खड़ा नहीं होता, क्योंकि जो भी मेरे दोस्त के पास ड्यूक और KTM थे सबने बेच दिया है. बिकॉज KTM's आई डोंट नो, अभी क्वालिटी अच्छा हो गया, बट बैक देन इन 2016 क्वालिटी अच्छा नहीं था. जब न्यू लॉट था तो थोड़ा मुश्किल था क्वालिटी मेंटेन करना. बट या दैट टाइम यू टुक अ रिस्क बिकॉज दिस वाज प्रोबेबली द फर्स्ट जेन R3s, दोस वर अवेलेबल इन इंडिया. एंड ओडिशा में भी शायद तेरा फर्स्ट या सेकंड बाइक होगा. मेरा थर्ड बाइक इन. एंड लेट्स टॉक मोर अबाउट द बाइक. क्या क्या मॉड्स हुए हैं एंड कैसा चल रहा है गाड़ी, एंड देन वी टॉक अबाउट how to take care of your motorcycle during this quarantine period. ये गाड़ी जो है ऑलमोस्ट कितना साल हो गया होगा तेरे पास? 3 से 4 साल. अभी 4 होने वाला है. 4 साल होने को है. एंड कितना ऑडोमीटर रनिंग हो गया इस पे? इसमें हो गया 45,979. That's huge, man. 45,979. This is probably the highest running R3 in Odisha, maybe. कह नहीं सकते, I don't know. अभी बहुत सारे राइडर्स आ गए हैं आपके साथ.
दैट्स सॉलिड। गाड़ी के साथ तेरा जितना भी ओनरशिप रहा है, एज यू सेड द टाइम यू वर बाइंग द बाइक, तब ऑप्शंस क्या क्या थे तुम्हारे पास? ड्यूक 390, CBR 250, बेनेली 300 भी आ गया था, निंजा 300 भी था, और तभी ये लेटेस्ट है। सो व्हाई R3? क्या है ना, ड्यूक का पावर ऐसे स्टार्टिंग में आ जाता है, फिर 8000 9000 के आर में खत्म है वो, और बहुत रेस्टलेस है, जी नहीं सकता मैं, पैर वैर गर्म हो जाता है। निंजा 300 पावर आता है, स्टार्टिंग में कुछ है नहीं, मिडिल में बहुत कम है, और पूरा एंड में पावर आता है। वेट करना पड़ता है, इंजन को हमेशा मोड़ते रहो। इट इज काइंड ऑफ द परफेक्ट बैलेंस, क्योंकि इसमें एक चीज़ है ऑफसेट क्रैंक। ओके। तो उसमें क्या होता है ना, तेरा जो कनेक्टिंग रॉड होता है पिस्टन का, तो उसका जो सेकंड साइकिल है जिसमें पिस्टन स्ट्राइक डाउन करता है नीचे, ओके, ठीक है ना, वो मतलब एट दैट टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग डाउन इट इज लाइक इन लाइन, वो थोड़ा ऑफसेट है, तुम्हारा जो क्रैंकशाफ्ट है ना वो मिडिल में नहीं है, वो थोड़ा ऑफ है, तो वो साइड से पुश करता है क्रैंक को, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर होता है, मैक्सिमम। सो पावर लॉस बहुत कम है इसमें। पावर लॉस कम है, और इसके वजह से इसका टॉर्क ज्यादा है। ओके। और 4000 आरपीएम से ये बढ़िया खींचना चालू करता है, जो निंजा 300 में नहीं है। बट इफ यू कंपेयर ऑल द स्पेक्स एंड अबव, तो ऑलमोस्ट जो पावर फिगर्स हैं एंड स्पेक शीट्स है निंजा 300 का इसके साथ ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, राइट? हाँ, मतलब BHP तुम कितना 3 BHP कम है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, पावर डिलीवरी दिस इज वे मोर लीनियर। आप अगर निंजा 300 का ग्राफ देखो, वो ऐसे जाता है, एंड में उठता है, इसका ग्राफ बीच से उठना चालू हो जाता है। ओके 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 ओके। सो बट द टाइम यू बॉट दिस, तब तुम्हारे पास इतने ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे, सो एंड यू माइट नॉट हैव रिडन दिस टू दैट एक्सट्रीम कि आप चूज करोगे। बहुत सारे नए बायर्स के साथ वो इशू भी होता है, बिकॉज जो बाइक वो खरीदना चाह रहे हैं उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, दे डोंट नो कि वो जिस बाइक पे पैसा लगा रहे हैं, बिकॉज 3,3.6 आई गेस दिस वाज 3.76, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, किसी को खर्च करना है तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो एट द टाइम जब नया गाड़ी आता है, विदाउट रिगोरसली राइडिंग दैट बाइक, हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये गाड़ी अच्छा निकलेगा? ह्यूज शाउट आउट टू पार्थ, Okay. उससे मैंने बस फेसबुक पे बात किया था, तो मेरे एक दोस्त का दोस्त था वो, तो उसने मेरे को ऐसे एक मैसेज से अपना बाइक ऑफर कर दिया था, हम लोग कटक में मिले थे, और जैसे मैं बाइक पे बैठा और जैसे मैंने एक्सीलेटर मोड़ा, पहले ही 5 सेकंड में प्यार हो गया। पहले बिकॉज परफेक्ट था, इतना स्मूथ और इतना बढ़िया पावर डिलीवरी, 5000 आरपीएम से हल्का के 10,000 में पूरा रॉकेट हो जाती है गाड़ी, मतलब परफेक्ट। इस पे अभी तुमने क्या क्या मॉड्स किए हैं अब तक, मतलब तो विच हैव बीन द मॉड्स एंड उनका क्या क्या बेनिफिट्स रहा है? थोड़ा स्टार्टिंग में डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि R सीरीज इज ऑलवेज नोन फॉर लाइक रेस ट्रैक बाइक्स, सुपर स्पोर्ट्स, बट इस यामा ने इसको बनाया था निंजा 300 के साथ कम्पीट करने के लिए। ओके। तो इट बिकेम अ स्पोर्ट्स टूरर। ओके। तो मैंने, इफ यू कैन कम क्लोजर आई विल शो यू, सबसे इम्पोर्टेंट और पहला मोड मैंने किया, जो क्लिप ऑन्स थे वो यहाँ पे थे पहले। Okay. तो मैंने उसको नीचे लगाया, ट्रिपल क्लैम्प के नीचे लगाया, तो इससे क्या होता है ना, हैंडल बार अपना नीचे चला गया। ओके। पहला मोड। सेकंड मोड मैंने किया क्विक थ्रॉटल, इससे क्या होगा, मेरा थ्रॉटल का एक्शन कम हो जाता है, मैं थोड़ा सा मोड़ने से बहुत पावर जो हम मोड़ते हैं पूरा साइकिल, तो तेरा ऑलमोस्ट आधा या 75% साइकिल में हो जाता है। और क्योंकि मैंने क्लिप ऑन को नीचे लिया, तो मेरा ये जो एक्सीलेटर केबल वो नीचे था, वो नीचे यहाँ पे रब कर रहा था, यहाँ पे निशान भी आप देखो, तो मैंने ये थ्रॉटल केबल मेरे को लगाना पड़ा ताकि केबल ऊपर से जाए। ओके ओके। और मैंने ये किल से हटा दिया है, छोटा सा चीज़ है वो। और हाँ, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये रियर सेट से अली एक्सप्रेस से मंगाया था चाइना से, तो मेरे फुट पैक्स अभी पीछे चले गए। ओके। हैंडल बार डाउन है, फुट पैक पीछे चले गए, नाउ इट्स रेस रेडी। ओके ओके। फिर मैंने लगाया फुल सिस्टम एग्जॉस्ट। ओके। ये ओरिजिनल तो नहीं है, बट हाँ मतलब मैटर नहीं करता, तुम्हारा अगर बेंड पाइप और एग्जॉस्ट अच्छा बिल्ट है, लंबा है, मैटर नहीं करता। ओके। उसके बाद मैंने आगे का जो सस्पेंशन है वो बहुत सॉफ्ट था, क्योंकि यामा ने इसमें पतला तेल डाला था 10W वाला, जो एक लाइट ऑयल है, तो मैंने इसमें डाला 20W, जो थोड़ा आगे का सस्पेंशन को स्टिफ कर दिया। स्टिफ होने से क्या होता है ना, कॉर्नर एंट्री में नोज डाइव नहीं करता है, हाँ स्टेबल रहता है। और मैंने पीछे का जो सस्पेंशन है उसमें प्रीलोड 2 क्लिक से बढ़ाया है, ताकि वो बहुत सॉफ्ट था, क्योंकि स्पोर्ट्स टूरर। आई गेस प्रीलोड का जो सेटअप रहता है वो हर किसी के ऊपर डिपेंड भी करता है, वेट के हिसाब से, राइडर वेट कितना है। तुम जाओ अपना सैग सेटिंग एक होता है, तुम कैसे सैग सेटअप करो, वो पावर ड्रिफ्ट में भी उन्होंने एक वीडियो बनाया था। मैं अगर 90 किलो का हूँ, मेरा प्रीलोड ज़्यादा बढ़ेगा। अगर कोई और हर एक कंपनी ना 75 kg एवरेज लेके चलती है। ओके। 75 kg के आसपास अगर तुम्हारा वजन है तो तुमको कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके ओके। और मैंने टेल टाइडी यहाँ पे कराया, बहुत अच्छा किट है ये किट, पता नहीं टेल वर्क्स करके कुछ कंपनी है, पल्सर 200 NS RS का, सॉरी RS का मैंने लाइट लगाया। टायर आया था 140 सेक्शन का, 150 का लगाया, जो कि स्ट्रेट फिट है, कोई दिक्कत नहीं। और स्विंग आर्म स्पूल्स लगाए मैंने नीचे, ताकि
ताकि मैं पैडॉक स्टैंड चढ़ा पाऊँ। यहाँ पे टैंक ग्रिप है, ग्रिप करना बहुत इंपॉर्टेंट है टैंक को, बाइक को, इसलिए बाइक जो जिसकी टैंक नैरो होती है उसको चलाने में मज़ा आता है। फ्रेम स्लाइडर भी लगाया है तूने। एक बार एक्सीडेंट हुआ था और बाइक लेफ्ट साइड पे एकदम स्लाइड मार के गई। फ्रेम स्लाइडर थोड़ा बेंड हुआ, लेकिन मेरा लगभग 14,000 का फेयरिंग बच गया। ओह लवली। 4,000 का इन्वेस्टमेंट और 10,000 का सेविंग्स। लवली लवली लवली। सो दोज ऑल आर इट एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंजन। अभी इसमें कौन सा ऑयल डला हुआ है? अभी इससे पहले मैंने डाला हुआ था शेल, जो कि मेरी फेवरेट ऑयल है। शेल एडवांस्ड, जो कि फुल्ली सिंथेटिक आ जाती है। अमेजोन पे अगर प्राइसिंग तुम देखोगे तो 600 के आसपास तुमको मिल जाएगी। और मतलब इतनी पतली है और वो आराम से 5,000 किलोमीटर चल जाती है। इट्स बटर स्मूथ, इट्स अ लवली मैरिज बिटवीन यामा इंजन्स एंड लाइक शेल का सिंथेटिक। हैव यू ट्राइड एनी अदर ऑयल्स? उससे पहले मैंने मोटो का ट्राई किया था 300V, लेकिन वो प्रॉपर रेस ट्रैक ऑयल है और वो 2,000 किलोमीटर के बाद ही खराब हो जाती है। ओके 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 ओके। इट नीड्स टू बी थ्रोन अवे वंस यूज्ड, मतलब क्योंकि रेस ट्रैक ऑयल है, उसको लॉन्ग टर्म का नहीं चलाने का। राइट 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 राइट। एंड एनी अदर ब्रांड्स? और उससे पहले मैंने एक बार वो ट्राई किया था कैस्ट्रोल का पावर वन। कभी कभी यूज मत करना। सो द नेक्स्ट ट्राई ऑन दिस बाइक शैल बी लिक्विमोली। ओके, मैडबाइकर आप अगर स्पॉन्सर कर सकते हो, मैं बड़ा बड़ा स्टिकर लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पूरा इस गाड़ी पे हम लोग मैडबाइकर का स्टिकरिंग कर लेंगे। ब्लैक कलर के बाइक पे येलो स्टिकरिंग। ओके, ये थे डिटेल्स अबाउट द बाइक एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी डू इज टॉक अबाउट हाउ टू मेंटेन योर बाइक द टाइम यू आर होमिंग अराउंड इन क्वारंटाइन पीरियड। घर पे बैठे हो, बाइक है अपने पास, बट आप घूम नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, बट स्टिल योर बाइक नीड्स टू बी ओके सो दैट जब आपका क्वारंटाइन खत्म हो जाए तब आप बाइक लेकर के फटाफट निकल सको एंड देयर शुड नॉट बी एनी इश्यूज विद द बाइक. सो लेट्स टॉक अबाउट दोज पॉइंट्स. First thing starts with chain maintenance, I guess. And if we talk about chain, then it's very important for you to have a paddock stand at home. अगर आपके पास paddock नहीं है तो फिर आप पत्थर वत्थर या कुछ भी दे करके आप स्विंग आर्म को उठा करके नीचे से रख सकते हो, या फिर नॉर्मली जैसे साइड स्टैंड पर रहता है वैसे रख सकते हो. और एल्स अगर आपके बाइक में मेन स्टैंड दिया हुआ है, दैट्स वेल एंड फाइन, यू आर लकी इनफ. पैडॉक स्टैंड लगने के बाद आपका पीछे का रियर व्हील जो है वो लिफ्ट अप हो जाता है एंड यू आर एबल टू मेंटेन योर बाइक्स रियर सेक्शन प्रॉपरली. सो दिस इज द चेन एंड इसको हर 500 किलोमीटर्स में ल्यूब और 1000 किलोमीटर्स में चेन क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है. एंड बिकॉज ड्यूरिंग क्वारंटाइन, ड्यूरिंग एनी लॉकडाउन पीरियड, जब आपका गाड़ी चल नहीं रहा है रोड पे, सो व्हाट हैपन्स, आपके चेन में जो ऑयल एंड ग्रीस रहता है वो डस्ट को लेकर के स्टिकी बन जाता है एंड द मूवमेंट ऑफ द चेन, जो रेगुलर राइडिंग की वजह से चेन मूव होता रहता है एंड डस्ट साइड होता रहता है, एक फंक्शनिंग चलता रहता है, वो फॉल्ट में आ जाता है. सो देयर आर चांसेस ऑफ थिंग्स गेटिंग जैम्ड अप. और आप जब अचानक से बाहर निकालोगे गाड़ी को तो इंस्टेंट थ्रॉटल पे अगर चेन के ऊपर प्रेशर डलता है तो देयर इज स्लाइटेस्ट ऑफ चांस दैट द लिंक माइट ब्रेक डाउन, या फिर कुछ भी हो जाए, या फिर ऑफ रोड ये चेन ऑफ द स्प्रॉकेट हो जाए. So in that case you have to take care of the chain first, clean it and lube it. That would be the next thing that is to be done with the bike. Make sure कि अगर आपका बाइक एक्सेसिबल है, आप रोज स्टार्ट कीजिए. Right. क्योंकि इंजन ऑयल अगर नीचे सम्प में बैठ जाता है ना, तो हेडर और सारा अपना जो ऊपर का वाल्व ट्रेन है वो सब सूखा हो जाता है. इट्स नॉट गुड फॉर द इंजन. Right. ऑयल अप होना इंजन को नेसेसरी है. Right. अगर आप बाइक को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, बैटरी निकाल दो, टंकी फुल करो और कवर करके रख दो. Right. एंड मेक श्योर आप कुछ एंटी रैट, एंटी माउस वगैरह इधर सीट के पास रख दो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि चूहे या फिर कीड़े मकोड़े कुछ अंदर घुस जाते हैं एंड दे ट्राई टू, मतलब वो खा जाते हैं यार वायरिंग वगैरह. Exactly. कई बार ऐसा हुआ है, मेरे दोस्तों के सुपर बाइक्स में भी हुआ है, that they have just moved out because of business and जब वो रिटर्न करके आए अपने बिजनेस ट्रिप से तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, देखते हैं तो चूहा हुआ कुछ तो तार काट लेता है. एंड दैट्स अ बिग हेडेक बिकॉज कोई सा भी बाइक का जो वायरिंग सेक्शन रहता है, नॉर्मल आप बुलेट वुलेट का देख लो तो सारे वायर्स ऐसे खुले पड़े रहते हैं, बट अभी जितने भी सुपर बाइक्स रहते हैं या फिर अच्छे बाइक्स रहते हैं, उनमें क्या रहता है कि वायरिंग जो है एक हार्नेस रहता है एंड एनी ब्रेकेज इन द हार्नेस इज़ एन इश्यू. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एक ऐसे जगह पे चूहा काट लेता है कि आपको एंटायर हार्नेस चेंज करना पड़ता है. मतलब यहाँ काटा तो पूरा का पूरा वायरिंग फॉर द एंटायर बाइक हैज़ टू बी चेंज्ड. सो दैट क्रिएट्स एन इशू एंड वो बहुत बड़ा फटका आ जाता है पॉकेट पे. सो इन दैट केस यू जस्ट हैव टू टेक केयर कि आपका बाइक एक अच्छे से आइसोलेटेड प्लेस में रहे. इफ़ पॉसिबल कीप इट कवर्ड अप. एज सावन सेड, यू हैव टू प्लांट सम रैट किल्स, या फिर जो भी ऐसे रोडेंट एंटी रोडेंट्स रहते हैं उनको आप प्लांट करो, ताकि यू कैन अवॉइड दैट
वायर कटिंग थिंग एंड गुड टू हैव योर टैंक फिल्ड अप एज वेल, क्योंकि उसके दो रीजंस रहते हैं. एक टैंक के अंदर कोरोजन आ सकता है, और दूसरा ये कि अपना जो कार्बोरेटर होता है उस पर अगर एक कांस्टेंट प्रेशर ना रहे तो उसमें एक छोटा फ्लोट रहता है. पुराने बाइक्स का बात कर रहा हूँ, नए बाइक्स की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो वो फ्लोट का स्प्रिंग खराब हो जाता है अगर उस पर कुछ प्रेशर नहीं दबा रहता है. ओके. एंड एडिशनल थिंग इज, अगर टैंक खाली रहा तो यू मस्ट बी नोइंग दैट एन एम्प्टी टैंक या फिर क्लोज टू एम्प्टी टैंक एक्चुअल में, बट कभी तो ऐसा पूरा एम्प्टी नहीं रहता है, थोड़ा बहुत तेल रहता है हमेशा टैंक में. जितना एम्प्टी हो जाए ना टैंक, उतना मतलब इट्स हाईली फ्लेमेबल, या फिर फटने का चांसेस ज़्यादा है. लेमैन के लैंग्वेज में बोलो, आप एक फुल टैंक को ले लो, उसके ऊपर माचिस दिखाओ, वो उतना नहीं फटेगा. बट एन एम्प्टी टैंक, क्योंकि उसमें गैस का प्रेशर ज़्यादा बना हुआ रहता है, सो दैट्स हाईली इन्फ्लेमेबल. दैट इज़ वन रीज़न. एंड सेकेंडरी रीज़न इज, इन केस यू आर इन सच अ लॉकडाउन सिचुएशन एंड आपको पता चला कि एक दिन आपको निकलने का मौका मिल रहा है, या फिर बाहर कहीं पे कुछ हो रहा है सिचुएशन, यू आर एबल टू राइड योर बाइक, you should be having your tank filled up to enjoy that ride, right? So it's always important to keep your bike tank filled. चीज़ बोलूँगा मैं, जितने भी तुम्हारे बाइक्स को ओपनिंग्स है ना, फॉर एग्जांपल लाइक, अगर आप ये चीज़ कर सकते हो अच्छी बात है, क्योंकि आप मोस्ट लोग नॉर्मल फिल्टर यूज़ नहीं करते होंगे, मतलब नॉर्मल फिल्टर यूज़ करते होंगे, नॉट KNN वगैरह, BMC वगैरह नहीं, ठीक है. तो आपका जो एयर फिल्टर का बॉक्स है ना, उसके अंदर कुछ कपड़ा घुसा दो, और ये जो अपना एग्जॉस्ट है ना, इसके पीछे ओपनिंग है, उसके अंदर भी कुछ कपड़ा घुसा दो. मेक श्योर इंजन का जितना भी सारा मतलब एंट्री पॉइंट है ना, एयर फिल्टर हो गया और एग्जॉस्ट हो गया, उसको आप कवर कर दो, क्योंकि अंदर जानवर जाके कोई साइलेंसर के अंदर रह सकता है. यस, आई गेस हमने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें एक स्कूटी के फ्रंट हेडलाइट हार्नेस के अंदर एक कोबरा घुस गया था, स्नेक. So any slight opening and that's prone towards any animal getting inside it. तो रिस्क हो सकता है, इसलिए just take care of your motorcycle and keep it ready to be ridden again. और मैंने ये भी लगाया है KNN एयर फिल्टर. मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, प्लीज़ गो फॉर KNN या फिर BMC, जो भी, वो एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है. आपको बार बार 400 रुपये 300 रुपये एयर फिल्टर को देने की ज़रूरत नहीं है. 1000 रुपये का किट ले आओ, निकालो, साफ़ करो, फिर से लगा दो. लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट. एंड येस, कंप्लेन टू यामाहा इंडिया बिग टाइम, प्लीज़ यार ये सीट चेंज करो, इसको फिक्स करो. लाइक ये मेरा दूसरा सीट है, एंड RC का ये दिक्कत है, अगर आप व्हीली मारते हो, इसका जो सीट है ना पूरा प्लास्टिक का है, और इसका ये देखिए, सीट का आधा हिस्सा इधर अटका हुआ है, ये टूटा हुआ है. मैंने इसको MCL में 2 बार काम किया है, नेवर वर्क्स. क्या होता है जब भी, और ये वाला प्लास्टिक भी टूट जाता है जब भी व्हीली मारता हूँ, इसकी वजह से ही सीट का लॉक टूट रहा है. गेस अगर ये पोर्शन हम स्टिफ एक मिल जाए, दिस पोर्शन इज स्ट्रॉन्ग एनफ. नहीं, एक्चुअली वैसा बात नहीं है, बिकॉज इसके ऊपर ये रहता है, ये भी रहता है, ये भी रहता है, दोनों पे डलता है, दोनों पे प्रेशर डलता है. okay. और इस पे जब प्रेशर डलता है ना, इसका ये वाला पोर्शन तो मेटल नहीं है, प्लास्टिक है, और ये जस्ट टूट जा रहा है. 2 बार ऐसे हो चुका है. दिस इज okay, that's a disgrace. So Yamaha India, if you're watching this, then this should be taken care. Any other flaws with the bike? एब्सोल्युटली नॉट. तुमको मतलब द अमाउंट ऑफ पावर, इट्स अमेजिंग. पूरा प्रैक्टिकल टॉर्क है, तुम हाईवे में ओवरटेक करोगे आराम से. So what has been the top speed that you have run on this bike? मैं मोटा हूँ, आई हैव गॉट 194, लेकिन मेरे एक दोस्त है पॉली, वो 199 लगा चुका है. 199 हाँ, कि वो पतला है. on a 300cc bike? हाँ, वो Are you fucking kidding me? Yeah. So yes, this is one hell of a value for money bike, and already he has stated all the fine points about the bike, and one important thing actually, the service cost thing. So अगर हम इसको own करते हैं तो हमारा servicing cost, usual services apart from worn out things like brake pad हो गया, clutch plate हो गया, usual service charges कितना क्या रहता है? नॉर्मल जो आता है 5000 वाला, वो तो आई विल रिकमेंड कि आप खुद ही कर लो. नहीं, पहला 2 साल जो वारंटी का होता है ना, जाओ 3000 रुपये के आसपास लगेगा, 2800 के आसपास, which is pretty cheap compared to Kawasaki. Solid. और मतलब, और एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, इसका जो चेन स्प्रॉकेट है, दैट कॉस्ट ओनली 4700 रुपीज. What? पूरा किट. Crazy man. हाँ, पूरा किट. Shit. लीवर वगैरह some 70-80 bucks, which is like cheap, very cheap. It's cheap man. हाँ. Japanese is solid. I mean, especially Honda and Yamaha. These two are like game changers in. Honda का जो क्वालिटी है ना, उसको कोई नहीं मार सकता. और Yamaha का इंजन. Yamaha, unfortunately, मतलब the time I also bought my CBR 650, Yamaha was not having any options. और अभी भी उसके पास कुछ भी नहीं है. बहुत कंजर्वेटिव कंपनी है. बहुत कंजर्वेटिव. छोटे-छोटे पैकेट्स में प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट एक्चुअली हिटिंग द टारगेट जहाँ पे उनका बूम होना चाहिए. यार अगर मतलब Yamaha, मतलब Kawasaki की तरह
यामाहा अगर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता ना, और क्योंकि कावासाकी का प्राइसिंग कितना बढ़िया क्योंकि उनका असेंबली प्लांट है चक्कर, राइट। अगर यामाहा का असेंबली प्लांट आ जाए और R6 आ जाए, आय हाय हाय माशाल्लाह। I sit on the bike, this is the posture, and एक बार like he is currently having his front end lowered. इसने क्लिप ऑन का सेटअप चेंज किया है, यहाँ पे लगता था उसको नीचे ले लिया। नॉर्मली ऐसे रहता है, नॉर्मली ऐसे थोड़ा ऊपर उठ करके रहता है आराम। सो दिस इज काइंड ऑफ अ टूरिंग पोस्टर। टूरिंग है मतलब तुम्हारा टूरिंग स्पीड भी जो है अच्छा खासा रह रहा होगा। इट विल बी अबव, लाइक मैं जितने भी राइड्स किया हूँ, वाइजैक जाता हूँ, क्रूज कर सकता हूँ आराम से 140 में, 8000 आरपीएम के पास रहता है और इंजन बिल्कुल गर्म नहीं होता। ओह सॉलिड, दिस इज नाइस। मतलब 130 140 में भी आपको माइलेज, क्योंकि रियल टाइम माइलेज दिखाता है, तो उसमें माइलेज आपको आ जाता है 28 27 के आसपास। ओह लवली लवली। व्हाट इज द बेस्ट माइलेज दैट यू हैव गॉट ऑन दिस बाइक? 38 किलोमीटर पर लीटर। कितना मतलब 20 में दौड़ा रहा था क्या गाड़ी? 6th गियर पे 85 पे क्रूज कर रहा है। Oh, lovely. 6th gear, 85 km/h. This generates, this gives a fuel economy of 38 kilometers per liter. That's bloody hell. That's amazing. And ये एक बात कहना चाहूँगा कि this is, we are not, getting biased towards Yamaha. We are not simply talking great about Yamaha. We are just talking what we have experienced on this motorcycle, and that's true to us. मेरे दोस्तों ने KTM लिया है, उन्होंने कावासाकी लिया है। Yes. 3-4 साल राइडिंग उनके साथ किया। हर किसी का अपना अपना व्यू रहता है। ये सिर्फ इसने वही बताया जो इसने इस गाड़ी के साथ फील किया अभी तक, एंड हर किसी का अपना अपना स्टोरी है। यूजुअली पीपल टॉक अबाउट द गुड पार्ट्स एंड वी ट्राई टू टॉक अबाउट द गुड एंड बैड ओवर हियर। वी ट्राई टू 300 इज अ ग्रेट बाइक। इट्स अ ग्रेट बाइक। 400 भी बढ़िया है, और मतलब 390 अभी। But you know what I dislike the most about Kawasaki? It's the service. I mean, to be honest, I feel it could be so much better. The pricing, the service quality itself, because you enter a Harley dealership, you will know what's royalty. You will absolutely know what's royalty. Any big brands, any big bike brands, I would highly recommend you go and drop down to a Harley dealership. You will know what a big bike ownership is. Even if you don't own a bike, they'll treat you like you are just amazing. Yeah, now let's go and start it up. See how the music is. So ये था Yamaha R3 and अपना ownership and why we have this beautiful bike at our place. हमने क्यों choose किया Yamaha R3, and we also talked about the quarantine tips. आप अपने बाइक का कैसे केयर ले सकते हो during this lockdown period, and the entire thing about Yamaha and all. Hopefully this video helps you in making a good buying decision ahead. Because we are not, again, we are saying we are not getting biased towards Yamaha. We're just stating what we are feeling about the brand, what we are feeling about the motorcycle. That's it. If somebody feels great about Royal Enfield, thumbs up, because it has been great to you. Your bike, you're loving it. Exactly. Everybody has their own priorities, own अपने अपने पसंद है, हर किसी के अपने अपने choices हैं. So let's enjoy our own motorcycles and have fun. किसी को कॉफी, किसी को चाय. Exactly. So if you are having a buying decision to be made recently, अभी कुछ दिनों में, then do watch this video, do share with your friends, and make him know the points which are to be considered while buying, and just take care of your motorcycle and your family back home. Stay safe, stay home, and Jai Hind. Ciao.